بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پروفیسر شاہد حسین آج آپ کو اردو کے بارے میں پہلا لیکچر دینے جا رہا ہوں۔ پہلا لیکچر ہمارا ہوگا اردو املا کی غلطیاں۔ کچھ الفاظ ایسے ہیں جن کو ہم بہت روانی سے لکھتے ہیں، اردو میں بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں اور وہ ہم عام طور پر غلط لکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو بہت سارے اہل علم حضرات کو بھی اس کا پتہ نہیں ہوتا کہ ہم غلط لکھ رہے ہیں، لیکن علم الکلام کے حساب سے، علم البیان کے حساب سے وہ اور ہوتے ہیں، علم الکلام کے حساب سے وہ اور ہوتے ہیں۔ تو آج ہم یہاں پر کچھ ایسے الفاظ آپ کے درست کروائیں گے جو آپ لکھنے میں عموماً غلطی کرتے ہیں، اور یہ بتا دوں کہ پنجاب بورڈ نے بھی اب جو میں نے الفاظ صحیح کروائے ہیں انہیں کو درست قرار دیا ہے، اور آپ کے ایگزامز میں، آپ کے پیپرز میں یہی الفاظ درست جو میں یہاں پر کروا رہا ہوں وہ درست تصور کیے جائیں گے، ورنہ ان کو غلط تصور کیا جائے گا۔ تو پہلے اس کے حصے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کچھ ایسے مرکبات ہوتے ہیں جن کو ہم ملا کر لکھ دیتے ہیں۔ دو یا دو سے زیادہ الفاظ پر مشتمل مرکب کہلاتا ہے، اور ہر لفظ اپنا اگر ایک معنی رکھتا ہے تو ہم ان کو ملا کر لکھیں گے تو یہ غلط ہوگا۔ جیسے پہلا لفظ ہے کیونکہ، تو کیونکہ ہم اس طرح سے لکھتے ہیں جو کہ غلط ہے۔ کیونکہ کیوں علیحدہ معنی رکھتا ہے، کہ علیحدہ معنی رکھتا ہے، تو لہٰذا کیونکہ ہم اس طرح سے لکھیں گے۔ اس کے بعد بہت زیادہ استعمال ہونے لفظ اس کا، اس کا، اس کی، اس کی، اس کو ہم اس طرح سے ملا کر لکھ دیتے ہیں، اس کا، اس کی، تو اس کو بھی علیحدہ علیحدہ، اس کا یا اس کی، یہ ہم علیحدہ علیحدہ لکھیں گے۔ اور اگلا لفظ ہے آج کل۔ آج کل عموماً اس طرح سے لکھا ہوا ہمیں ملتا ہے جو کہ غلط ہے۔ آج اور کل اس کو علیحدہ علیحدہ سے اس طرح سے آپ لکھیں گے۔ اگلا جو کہ بہت ہی زیادہ استعمال ہونے والا، آپ کے آنسر شیٹ جو ہے وہ اس کے پہلے ہی پیپر پہ لکھنا پڑتا ہے آپ کو رول نمبر، اور اکثر بچے رول نمبر یا تو اس طرح سے لکھتے ہیں یا اس طرح سے لکھ دیتے ہیں۔ رول نمبر کو ملا کر لکھنا یہ بھی غلط ہے۔ اور دوسرا سوال نمبر، اسی کے ساتھ سوال نمبر بھی اس کو میں تھوڑا سا اگر یہاں پر لکھ دوں، سوال نمبر بھی اس طرح سے لکھ دیا جاتا ہے جو کہ غلط ہے۔ تو لہٰذا رول نمبر اس طرح سے علیحدہ علیحدہ لکھیں گے، اور اسی کے ساتھ میں آپ کو لکھ دیتا ہوں کہ سوال نمبر بھی آپ شوشوں والی سین کے ساتھ لکھیں گے، اور اس طرح سے علیحدہ علیحدہ ان کو لکھا جائے گا۔ تو رول نمبر اور سوال نمبر یہ آپ علیحدہ علیحدہ الفاظ ان کے لکھیں گے، کیونکہ سوال ایک علیحدہ لفظ ہے، نمبر ایک علیحدہ لفظ ہے، رول ایک علیحدہ لفظ ہے، نمبر ایک علیحدہ لفظ ہے۔ اسی طرح جب کہ، ٹھیک ہے، جب کہ اس کو بھی اکٹھا لکھ دیا جاتا ہے جو کہ غلط ہے۔ اس طرح سے اس کو جب علیحدہ اور کہ علیحدہ لکھیں گے۔ اس لیے یہ جو لفظ ہے اس میں دو غلطیاں ہیں، ایک تو ان کو ملا کر لکھا گیا، دوسرا لیے غلط لکھا گیا، ٹھیک ہے۔ لیے کس طرح لکھا جاتا ہے یہ ہم آگے جا کے بعد میں آپ کو بتائیں گے۔ پہلے اس لیے جو اس طرح سے لکھا جاتا ہے اس کو غلط ہے۔ اس لیے ایسے ہوگا، اس کے اوپر حمزہ نہیں آئے گی، تو اس لیے ان کو علیحدہ علیحدہ کر کے لکھا جائے۔ ایک لفظ ہے ستم گر، ظلم کرنے والا۔ میں نے لاکھوں کے بول سہے ستم گر تیرے لیے، یہ وہ ستم گر ہے۔ تو یہ ستم گر اس طرح سے لکھا جاتا ہے، عموماً ہماری شاعری کی کتابوں میں بھی اس طرح لکھا ہوا ملتا ہے، ہماری ٹیکسٹ کی بک میں بھی اس طرح لکھا ہوا ملتا ہے، لیکن یہ اصل میں غلط ہے۔ دراصل اس طرح لکھنا، دو الفاظ کو ملا کر لکھنا، یہ کلیہ ہی غلط ہے۔ جو علیحدہ علیحدہ ستم کہتے ہیں ظلم کو، گر کہتے ہیں کرنے والا، ستم گر ظلم کرنے والا، تو یہ دونوں لفظ علیحدہ علیحدہ لکھے جائیں گے، ستم اور گر۔ تو یہ ایک ہے اس کا پورشن، پہلا حصہ ہے ہمارے غلطیوں کا کہ ہم مرکبات کو ملا کر لکھ دیتے ہیں۔ تو جو مرکب کا ایک لفظ اپنا الگ معنی رکھتا ہے، دوسرا لفظ اپنا الگ معنی لکھتا ہے، تو ان کو ملا کر نہیں لکھ سکتے۔ یہ کلیہ ہے، یہ رول ہے، اس کو فالو کیا جائے تو آپ کی املا کی غلطی یہ نہیں ہوگی۔ اب ہم دوسرے حصے کی طرف آتے ہیں جو کہ ہے ہمارا ہے کا استعمال۔ کہاں پر ہے ہاتھی والی استعمال ہونی ہے اور کہاں پر دو چشمی ہے استعمال ہونی ہے۔ جیسے لفظ تمہارا عموماً اس طرح سے لکھا ہوا ملتا ہے ہاتھی والے کے ساتھ، جو کہ غلط ہے۔
तुम्हारा लफ्ज़ है दो चश्मी है के साथ लिखा जाता है, ये सही तसव्वुर होगा। बाज़ जगह पर हम बैनर्स में देखते हैं लफ्ज़ है दो चश्मी है के साथ लिखा जाता है हमारा और है, ठीक है हम पढ़ते हैं है बड़ी है, तो ये तलफ़्फ़ुज़ गलत है। तो हमारा दो चश्मे है के साथ लिखा हुआ ये गलत तसव्वुर होगा, ये है हाथी के साथ होता है हमारा। इसी तरह ये है बड़ी है जो है ये भी है हाथी वाले के साथ होगा। इसी तरह से इन्हें या उन्हें हम है हाथी वाले के साथ लिखेंगे तो ये गलत है। इन्हें उन्हें जिन्हें ये लफ्ज़ दो चश्मे है के साथ आएगा। इन्हें जिन्हें तो ये दोनों अल्फाज दो चश्मे है के साथ आएंगे। इस तरह लफ्ज़ लाहौर जो लिखा जाता है अक्सर दो चश्मे है के साथ लिखा जाता है, गलत है। तो ये है हाथी वाले के साथ आएगा लाहौर। एक बहुत लफ्ज़ है जो अक्सर इसमें कन्फ्यूजन रहती है, बड़े बड़ों को अहले इल्म हज़रात को भी, बेपरवाह, मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं। तो परवाह लफ्ज़ नहीं होता, परवाह होता है, आखिर पे है नहीं आती, अलफ आता है। तो इसी से लापरवाही लिख दिया जाता है जो कि गलत है। लापरवाही नहीं होता, लापरवाही होता है, परवाही। तो हमजा छोटी ये ई आता है अगर पर, हे छोटी ये ही नहीं आता। लफ्ज़ लापरवाह नहीं होता, लापरवाह होता है। और इसी के तनासुब से लापरवाही नहीं होता, लापरवाही होता है। तो इस तरह से इसी है में तुम्हें जब लिखा जाता है, ये जैसे ये तुम्हारा लिखा गया था इधर, उसी से तुम्हें बना दिया जाता है, उसी हे को इस्तेमाल करते हुए हे हाथी वाले जो कि गलत है। तुम्हें दो चश्मे हे के साथ आता है। और हमारा से हमें, उसी तरह हमें भी लिखा जाता है, तो फिर ये भी गलत है, हमें हे हाथी वाले के साथ आना है। और इसके बाद तुम ही हो महबूब मेरे, मैं क्यों ना तुम्हें प्यार करूं, तो तुम ही लफ्ज़ जो है ये भी दो चश्मे है के साथ आएगा। उन्हों जैसे जिन्हें, इन्हें, उन्हें, तो ये भी उन्हों इस तरह से दो चश्मे है के साथ आएगा। तो ये था हे हाथी और दो चश्मे है का इस्तेमाल, कहाँ पर हे हाथी वाली इस्तेमाल होनी है और कहाँ पर दो चश्मे है इस्तेमाल होनी है। तो अब जो है एक लफ्ज़ जो जिनको अक्सर अमूमन लिखने में हम गलती करते हैं, दिए, लिए, गे, गए, तो बच्चे इसमें अमूमन लिखने में गलती करते हैं। दिए इस तरह से लिखा गया होता है हमारी बुक में, अक्सर पेपर्स में हम देखते हैं, तो इस तरह से ये दिए लिखा हुआ है, ये दिए गलत है। दाल और बड़ी ए के नीचे दो नुक्ते आएंगे तो ये दिए बन जाएगा। ये वाली बड़ी ए के नीचे दो नुक्ते और दाल के नीचे जेर आ जाएगा, दिए, ठीक है। और किए, ये किए नहीं, ये काए है लफ्ज़, इसको किए की जगह पर लिख दिया जाता है, तो ये गलत है। काफ के नीचे जेर आएगी और बड़ी ये आ जाएगी तो उसके नीचे दो नुक्ते आ जाएंगे, ये किए है। और इसी तरह से ये लिए गलत है, ये लिए दुरुस्त है। लाम के नीचे जेर आएगी और नीचे दो नुक्ते आएंगे बड़ी ये के साथ, तो ये दिए, लिए, गए। तो गए जो है यहाँ पर एक डंडा और डालकर हमजा डालेंगे तो ये गए बन जाएगी। गाफ बड़ी ये गे होता है, अक्सर बच्चे गे को गए लिख देते हैं और गए की जगह पर गे लिख देते हैं, ठीक है जी। तो अगली हमारी कुछ अमला की गलतियाँ जो अमूमन लोग गलत लिखते हैं, अल्फाज ही पूरे गलत लिखे जाते हैं, तो वो मैं कोशिश करूँगा कुछ अल्फाज आज यहाँ पर आपको सही करवाएं। लफ्ज़ लिखा जाता है यूनिवर्सिटी, ये इकट्ठा लिख दिया जाता है। ये हमारा पहला हिस्सा जो था कि दो मुरक्कबात को इकट्ठा लिखा जाता है मिलाकर, ये भी उसी तरह है यूनिवर्सिटी। तो यूनिवर्सिटी की जगह पर यूनी अलग लिखा जाएगा, वर्सिटी अलग लिखा जाएगा, ठीक है। और इस तरह लफ्ज़ चूँकि, ये क्योंकि से ही मसल है उसी के चूँ चूँ अलग लिखेंगे और के अलग लिखेंगे। और एक बहुत बड़ा लफ्ज़ चौधरी, अक्सर चौधरी लफ्ज़ लिख देते हैं, चौधरी कोई लफ्ज़ नहीं होता है। यहाँ पर भी दो चश्मे है बना सकते हैं तो वो चौधरी लिख देते हैं, तो ये भी चौधरी लफ्ज़ गलत है, ठीक है। असल में चौधरी जो है वो चौधरी होता है लफ्ज़, चुदराहट, ठीक है, चुदराहट। तो दाल के बाद है आती है, दाल से पहले है नहीं आती, चाहे वो दो चश्मी है चाहे वो ये है, बल्कि दो चश्मी है आती है उसमें और दाल के बाद आती है। तो ये लफ्ज़ चौधरी इस तरह से लिखा जाएगा।
एक लफ्ज़ लिखा जाता है जी अल्हम्दुलिल्लाह, तो लफ्ज़ अल्हम्दुलिल्लाह होता है तो इसमें ये अल्फ नहीं आता, तो इसको हम यहाँ पर लिखते हैं अल्हम्दु, इसके बाद अलफ नहीं आना, जस्ट यहाँ पर ज़ेर आ जाएगी कि ये लाम है और ये अल्हम्दुलिल्लाह होता है लफ्ज़। इसके अलफ अगर आप लगाएंगे इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। जैसे माशाअल्लाह लिखते हैं आप, ठीक है, इसके साथ ही मैं माशाअल्लाह लिखने की कोशिश करता हूँ। इस तरह अगर आप माशाअल्लाह लिख देंगे तो ये भी गलत हो जाएगा। तो माशाअल्लाह जो है यहाँ पर हमजा आएगा और फिर ये माशाअल्लाह लिखा जाएगा। इस तरह लफ्ज़ है मुंह, इस तरह से मुंह लिखा जाता है, ये गलत है। मुंह के लिए दो चश्मी है, पहले मीम और उसके बाद ये नून का सोच है और उसके बाद ये दो चश्मी है आएगी, तो ये मुंह जो है वो ये मुंह इस तरह से, ये मुंह और मसूर की दाल मुहावरा सुना होगा, तो अगर ये मुंह लिखेंगे तो यही होगा कि ये मुंह और मसूर की दाल, असल में मुंह जो है वो ये है। आज़ादी, अक्सर बच्चे आज़ादी लिखने में कन्फ्यूजन तज़ब्ज़ुब का शिकार होते हैं कि ये जाल से है या जे से है, तो आज़ादी जाल के साथ इस तरह से लिख देते हैं, तो ये जाल के साथ नहीं होता बल्कि जे के साथ होता है, यौम आज़ादी। और अक्सर हम ये पढ़ते हैं जब पेपर चेक करते हैं तो आज़ादी जो है वो हमें गलत लिखा हुआ मिलता है, जे के साथ आज़ादी। और एक लफ्ज़ है पजीराई, ठीक है, पजीराई अक्सर इस तरह से लिखा हुआ मिलता है जो कि गलत है। जैसे परवीन शाह का शेर है, कू बकू फैल गई बात शनासाई की, उसने खुशबू की तरह मेरी पजीराई की, तो ये पजीराई जो है वो गलत है। असल में पजीराई जाल के साथ हम लिखेंगे। ये पजीराई जो है ठीक है। तो ये वो अल्फाज हैं जो अमूमन देखने में बिल्कुल सही लगते हैं लेकिन अमूमन गलत तसव्वुर किए जाते हैं कुलिये के एतबार से, ग्रामर के एतबार से, उर्दू अदब के एतबार से, और पंजाब बोर्ड ने इन अल्फाज को ही दुरुस्त करार दिया है। आपके पेपर्स में इस तरह से अल्फाज लिखे हुए होंगे तो सही तसव्वुर होंगे, और अगर आप उनको इस तरह से लिखेंगे तो ये आपकी गलती तसव्वुर हो सकती है और वो आपके मार्क्स काट सकते हैं। उम्मीद है कि अगर आप इन असूलों को मद्देनज़र रखते हुए लिखेंगे तो आपके वो जो 1-2 मार्क्स गलती की वजह से, अमला की गलती की वजह से कट जाते हैं वो नहीं कटेंगे। उम्मीद है आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर ये लेक्चर पसंद हो तो हमारे जो वेबसाइट, हमारा चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें और साथ में लगा हुआ बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आप हमारे इस तरह के मज़ीद लेक्चर जो है वो देख सकें।